गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर ऑन मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। हम इसको क्या है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में डोर्स होते हैं। जब भी आप किसी डोर को ओपन करते हैं तो वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट्स हैंडल। जो डोर टर्न्स ऑन इट्स hinges, लार्जर द फोर्स मोर इज द टर्निंग इफेक्ट। जितना हम ज्यादा उसको रोटेट करते हैं या फोर्स लगाते हैं वो उतना टर्न हो जाता है। सो इन दिस केस वी ऑब्जर्व दैट इट इज वेरी इजियर टू ओपन ए डोर बाय अप्लाइंग ए फोर्स near the end than near the hinge. This is because of the turning effect of the same force is larger when its distance from the axis of rotation is more. This turning effect is called moment of force or torque. Torque depends upon two factors. One is magnitude of force and second one is the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation, which is known as lever arm या moment arm. From the two factors, we can say that if greater the magnitude of the force, greater is the moment of force, या greater is the turning effect. Thus, we can say that, या we can observe that the torque of moment of force is the turning effect of the force about the axis of rotation. It is measured at the product of magnitude of force and perpendicular distance between the line of action of force and axis of rotation as shown in figure. If you see that the figure, the point of application of force at point P and is the point where tau is equal to F into OM. या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि let us consider a body which is free to rotate about the vertical axis through point O. A horizontal force F applied on its point P rotate its about axis. If D is the perpendicular distance of the action of force from the axis of rotation, then the torque, if D is the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation, then the torque F, ये टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ओ एन। ओ से डिस्टेंस एन यानी डी है वो मेरा, एफ इंटू डी लिख सकता हूं मैं इसको। या टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर आर्म भी लिख सकते हैं या मूवमेंट भी लिख सकते हैं। मूवमेंट आर्म भी हमने इसको पढ़ा हुआ है तो दोनों चीज लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहते हो एज यू विश। अब इसके डायमेंशन हमने लिख लिए। फोर्स के ml t-2 होते हैं, डिस्टेंस l होता है, तो हमारे पास क्या हो गया ml2 t-2 हो जाता है। अब यूनिट्स है इसके, अब फोर्स है न्यूटन है और डिस्टेंस मीटर होता है इन एसआई सिस्टम में। अब अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूंगा तो उसमें डाइन और सेंटीमीटर्स होते हैं। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, साइन कन्वेंशन, ये नोट कर लो आप लोग कि the movement of force is taken positive if the turning tendency of the force is anti-clockwise. अगर anti-clockwise चलती है टर्निंग तो movement of force पॉजिटिव होगी, अदरवाइज इफ नेगेटिव इट इज क्लॉकवाइज। ये लर्न कर लो, इसको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स। लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल P in the xy plane. Suppose its position vector OP is equal to R as shown in figure with respect to the origin O in an inertial frame. Let F be the force acting on the particle. The torque acting on the particle may be defined as the vector product of position and force vector. Mathematically,
टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ लिख दिया हमने वेक्टर फॉर्म में। तो वो आर जो है मेरा डिस्पोजिशन है और एफ मेरा फोर्स है। टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing vector position r and force vector f and is determined by the right hand rule. If we curl the finger of our right hand in the direction of which vector r must be rotated to move into the position vector r f through the smaller angle between them, through the smaller angle theta, then we can say that if theta is equal to 0 or 180 then tau is equal to 0. अब हमें पता है कि साइन 0 कितना होता है 0। ओके, अब सेकेंड केस है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है देन टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा 90 जो है वो 1 होता है तो एफ आर मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। वहां पे उस केस में हमारे पास टाउ की या टॉर्क की। इफ आर इज मैक्सिमम, अगर मेरा आर मैक्सिमम हो जाता है तो क्या होता है उस केस में, अगर आर मैक्सिमम हो जाता है तो टॉर्क जो है वो भी मैक्सिमम होगा ड्यू टू फोर्स। अब वो कैसे हम बोल सकते हैं, लेट अस सी व्हाई वी कैन ओपन आर क्लोज ए डोर इजीली बाय अप्लाइंग ए फोर्स नियर द आउटर एज ऑफ द डोर, यानी इट मीन्स दैट एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंग्स। फ्रॉम दिस रीजन ए हैंडल आर नाउ इज प्रोवाइडेड नियर द फ्री एज ऑफ द डोर। जब हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज वेरी इजियर, क्योंकि वहां पे टाउ जो है वो मैक्सिमम हो जाता है कि ओपन और क्लोज ए डोर देन वी अप्लाई ए फोर्स परपेंडिकुलर टू द डोर एट इट्स आउटर और फ्री एज। नेक्स्ट आर्टिकल है एंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल रोटेटिंग इन द XY plane about the region O. Suppose the force vector makes an angle theta with the position vector r of the particle as shown in figure. Now draw ON perpendicular to the line of action of the force from the right angle triangle O and P. We have ON upon OP is equal to sin theta. जो ON है मेरा वो कितना है, D के बराबर है। ON here, ये end point is here, okay, and OP is equal to R के बराबर है और ON D के बराबर है मेरे पास। तो देन D upon R is equal to sin theta, D is equal to R sin theta, हमने ऐसे लिख लिया है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू द पॉइंट O विच इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म और लीवर आर्म ऑफ द फोर्स। ये पिछले आर्टिकल में भी हमने पढ़ा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ फोर्स F इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये पिछले आर्टिकल का ये सारा F मैंने बाहर कर लिया, R साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर रख लिया, R साइन थीटा जो है D के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, वहां F इंटू डी लिख दिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मूवमेंट R। अगर मूवमेंट ऑफ R में या टॉर्क का हमने पढ़ा था तो हमने वहां भी तो यही पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू F इंटू डी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लीवर R, सेम वही तो आ गया हमारे पास। नाउ जो F है अब इस केस में दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रही है, एक रेडियल वेक्टर में, रेडियल कंपोनेंट सॉरी, और एक एंगुलर या टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में। अगर मैं रेडियल कंपोनेंट की बात करता हूं तो आर एफ आर से डिनोट कर रहा हूं, एफ आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर की तरफ जा रहा हो। अगर मैं एफ एंगुलर या टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करता हूं तो एफ थीटा जो परपेंडिकुलर टू आर है, तो देन एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा।
तो टाउ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एफ थीटा इंटू आर के बराबर हमने उसको लिख लिया है। तो टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द टॉर्क ड्यू टू ए फोर्स इज ओनली ड्यू टू इट्स एंगुलर कंपोनेंट। जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है वो एंगुलर कंपोनेंट की वजह से हो रही है। Hence we can conclude that the radial component of the force does not contribute to the torque. Hope you enjoyed this lecture. Thank you very much.